Hello everyone, welcome to JLN online class. Today we will discuss next chapter Devotion Path to the Divine, lesson 8. भी ईश्वर से अनुराग इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. You may have seen people perform ritual of worship or singing bhajan, kirtan, qawwali's or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God in the legacy of various kind of bhakti and Sufis movements that have evolved since the 8th century. अब आप ये भी देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कव्वाली गाते हैं और चुपचाप भगवान के नाम का जाप करते देखा होगा. और आपने ये भी गौर किया होगा कि वो इस भजन कीर्तन इसमें इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आते हैं. ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी. द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, भाई परमेश्वर के विचार क्या थे? Before large kingdoms, a much different group of people worshipped their own gods and goddesses as people were brought together through the growth of town, trade, empires. New ideas began to develop. The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal, even at birth, gained ground during this period. The belief that social privilege came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. क्या होता था कि बड़े बड़े जो राज्यों के जो उदय होने लगे थे ना, उसमें भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे. जब लोग नगरों के विकास, व्यापार, साम्राज्य इनके माध्यम से एक दूसरे के साथ आते थे ना, तब उनके नए नए विचार विकसित होने लगे और ये बात भी बिल्कुल फैलने लगी कि और मानने भी लगे कि सभी जीवधारी जो हैं वो अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और फिर दोबारा से जन्म के अनंत चक्रों में घूमते रहते हैं. इसी प्रकार ये भी विचार उनके गहरे मन में बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते और ये माना जाता था कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं. कई जो पांडित्य रूप पूर्ण ग्रंथों का भी विषय रहा. Many people were uneasy with such idea and turned to teaching of Buddha or Jainism, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal efforts. Others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotions or bhakti. This idea advocated in the Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of the common era. भी अनेक जो लोग थे ना, वो ऐसे विचारों के कारण बड़े बेचैन हो जाते थे, इसलिए वे बुद्ध, जैन इनके उपदेशों की ओर जाने लगे, जिनके अनुसार व्यक्ति क्या करते थे, अपने प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया. पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार की ओर आकर्षित हुए कि मनुष्य को भक्ति भाव से भगवान की शरण में जाना चाहिए और परमेश्वर जो है व्यक्ति के इस बंधन से मुक्त कर सकता है. और श्रीमद् भागवत में भी ये विचार है जो सामान्यतः प्रारंभिक शताब्दियों में काफ़ी लोकप्रिय रहा और विशद अनुष्ठानों के माध्यम से भी इसे माना गया. नेक्स्ट आता है कि शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डेटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू elaborate ritual. At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu or Durga. In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories, and methods of worship recorded in the Purans were introduced into the local cults.
Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of gods regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainis adopted these beliefs. फिर क्या हुआ कि भगवान मतलब उनके धार्मिक जो अनुष्ठान थे ना, उनके माध्यम से क्या हुआ कि शिव, विष्णु, दुर्गा और जो है उनको परम देवी देवताओं के रूप में उनको पूजा जाने लगा। और साथ साथ जो उनके ना अलग अलग एरियाज़ में पूजे जाने वाले देवी देवता थे ना, शिव, विष्णु, दुर्गा, उनके रूप में मानने लगे। और ये जो प्रक्रिया थी, वो जो उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ थी, किस्से, कहानी, पौराणिक कथाएं, उनका भी अंग बन गए। फिर पुराणों में पूजा को कि जिन पद्धतियों की को बताया गया, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। और आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जात पात से बिलोंग करता हो, लेकिन वो सच्ची भक्ति से अगर भगवान की जो है वह कृपा पा सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हुई कि बौद्धों और जैन जो लोग थे उन्होंने भी इन विश्वासों को अपना लिया। नेक्स्ट आता है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार एंड अलवार। दक्षिण भारत में भक्ति के एक नया प्रकार था जिसे नैनार और अलवार बोलते हैं। The 7th to 9th century saw the emergence of the new religious movement led by the Newar Sant devoted by Shiva and Alwar Sant devoted by Vishnu, who came from all castes including those considered untouchable, like the Pulviar and Pannar. They were sharply critical of the Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiva and Vishnu as path of salvation. They drew upon the idea of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era, and blended them with the values of Bhakti. The Nainar and Alwar went from place to place composing exquisite poem in praise of deities and in the villages they visited and set them to music. भाई ये अलवार और नैनार कौन थे? 7वीं से 9वीं जो शताब्दी के बीच में ना धार्मिक आंदोलन काफ़ी चले। इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले जो नैनार थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नैनार जो थे वो थे शिव भगत, जो शैव संत थे यानी कि भगवान शिव को मानने वाले, और अलवार जो थे वो विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव संत जिनको बोलते हैं। ये जो संत थे सभी जातियों के थे, जिन्हें पुलैया और पन्नार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। यानी कि जो नीची जाति के लोग थे ना, उनमें पुलैया और पन्नार जिनको छूते भी नहीं थे लोग, इस जाति से बिलोंग करते थे। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य क्या था कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण जो सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित हुआ था, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया था। नैनार और अलवार जो क्या थे, वो घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहने वाले साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविताएं रचते थे और उनको संगीतबद्ध कर दिया करते थे। Dear students, enough for today. In next class we will discuss rest work of this chapter. Thank you and have a nice day.